بہت شکریہ. میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس سے پہلے جتنے پروگرام ہوئے ہیں کئی لوگوں کی درخواست تھی کہ کیوں نہ مدرسے کے تعاون کے لیے کچھ باکس بنا دیا جائے گا اور جو بھی اس میں چاہے مدرسے میں تعاون کرنا اس باکس میں ڈال دیں. تو عورتوں میں بچیاں لے کے کھڑی ہیں باکس اور مردوں میں بچے لے کے کھڑے ہیں باکس. جو لوگ یا جو صاحب اس مدرسے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں اس باکس میں پیسے ڈال سکتے ہیں. میری لسٹ کا آخری نام ضیاء اکرم تقریر کے لیے. میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد پروگرام اسٹارٹ کیے جائے. ارے لڑکوں تمہیں بہت پریشان کر دیے ہیں. قبضہ اٹھاؤ نہیں سنا. ارے مری بہت میں لڑکیاں میں بطور خاص اپنی ماؤں اور بہنوں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ بس 10 منٹ اور بیٹھے رہیں, ہمارے مہمان محترم کو سن کے جائیں. اس لیے کہ ان کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی حوصلہ افزائی اس سے کہیں پڑھ کر چونکہ آپ لوگ قوم کی معمار ہیں تو کچھ مشورے یا کچھ ایڈوائس دیں, شاید کہ ہم بہتر ہو جائیں, ہمارے بچے اور بہتر ہو جائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم وذنوبکم واللہ غفور رحیم. واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور شمع رسالت کے پیروانوں, ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 31 کی تلاوت کی. اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے. کہہ دیجیے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی
آخری نام تھا، لیکن ایک بچی بار بار وہ کہہ رہی ہے کہ مطلب مجھے بھی پڑھا دیا جائے، تو میں درخواست کروں گا منتشا بانا اور ان کے ساتھی سے کہ آئے اور اپنی نظم پیش کر دیں۔ اس کے بعد ہمارے محترم مولانا عارف اصلاحی صاحب، مینیجر آف اقرا پبلک اسکول سراویر اعظم گڑھ، ان کا معنی درخواست کروں گا، وہ آئیں گے اور انشاءاللہ خطاب کریں گے اور آپ لوگ مستفید ہوں گے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی تم کو پہل ہے جو ان کا سہارا، مخدوم ہے ان کے جو پیارے، ہم نے دے پھر تجھ کو سہارا، ملتے رہے ان کی جو ہے راحت پارا، ہم نے بتائے ہیں پھر ان کی محمد اما ہے، صلی علی پھر تو کو راہ ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معافی چاہوں گا، وہ بار بار اعلان کرتا ہوں کہ میری لسٹ میں یہ اگلا نام ہے، لیکن ایک ایک بچے آتے جا رہے، کیسے روکوں؟ یہ اسکول بچوں کا ہے، لیکن مولی عاصم صاحب مجھ پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ ایک بچہ تیاری کیا، ان کو نہیں بلایا ہوں ٹائم کی قلت کی وجہ سے، تو میں اس کو بھی بلا لیتا ہوں، اس کو بھی بلا لیتا ہوں تاکہ یہ بیلنس برابر ہو جائے، بعد میں قصوروار نہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پردہ نہ دیکھی سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ السلام علیکم۔ آخری نام صاحب جو بتائے تھے مجھے یاد تو نہیں، لسٹ میں نام نہیں، لیکن میں درخواست کروں گا وہ آئے اپنا کلام پیش کریں۔ یہ آخری نام ہے۔ ये बन लीजिए, खिलाए मत।
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. جو نہ ہوتا تیرا جمال ہی تو جہاں تھا خواب و خیال ہی. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. ماہ مہر میں تیری روشنی ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری ہوئی ختم تجھ پہ پیمبری. نہیں تجھ سا تیرے سوا کوئی کرے کون تیری برابری کرے کون تیری برابری. یہ نہیں کسی کی مجال ہی. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ صلو علیہ. نہ فصیل ہے نہ محل ترا تیرا فرش ہے وہی پہوریاں تیرا فرش ہے وہی پہوریاں. تیرے جسم پاک پہ کعبہ وہ بھی تار تار ہے جا بجا وہ بھی تار تار ہے جا بجا. تیری سادگی ہے کمال ہی. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ. تو خلیل ہے تو کلیم ہے تو رؤوف ہے تو رحیم ہے تو رؤوف ہے تو رحیم ہے تو حبیب رب کریم ہے. تیری شان سب سے عظیم ہے تیری شان سب سے عظیم ہے. نہیں کوئی تیری مثال ہی. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے مہمان محترم جناب عارف اصلاحی صاحب مینیجر آف اقرا پبلک سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیال کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی میں نے سلام کیا ہے. وعلیکم السلام. اسپیشلی میں جو سامنے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں ان سے جواب سننا چاہ رہا ہوں. بہت خوب ماشاء اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع ومسئول عن رعیتہ. محترم حضرات، وقت کی قلت ہے اس لیے میں نام بنام لوگوں کو پکار نہیں سکتا، مخاطب نہیں کر سکتا. ہمارے سامنے چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے لوگ بھی ہیں، مائیں بہنیں بھی ہیں اور وقت بہت کم ہے. میں تو سوچ کر آیا تھا کہ آج ان بچوں سے ڈھیر ساری گفتگو کروں گا، مجھے موقع ملا ہے، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس سے بس 2-3 باتیں کر کے میں اپنی جگہ لے لوں. پہلے تو یہ کہ ذرا سا بچوں کو بیدار کرنے کے لیے، ہوشیار کرنے کے لیے ان کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں. سنیں گے نا آپ لوگ؟ جی.
कहानी का एक लतीफ़ा है, समझ लीजिए, अभी आपके समझ में भी आ जाएगी बात कि एक दफ़ा मुकाबला हुआ बच्चों में कि कौन बच्चा है जो सबसे मुख्तसर कहानी सुनाएगा, छोटी सी छोटी कहानी बहुत कम वक्तों में। मैं ये लतीफ़ा इसलिए सुना रहा हूँ कि मुझे भी उसी से गुजरना पड़ रहा है कि अपनी सारी बातें बहुत छोटी बहुत मुख्तसर बयान करना पड़ रहा है। तो ये मुकाबला हुआ क्लास में कि कौन है जो बहुत कम वक्त में एक कहानी पूरी सुना डाले। तो बहुत सारे लोगों ने मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाई। एक बच्चे ने कहानी सुनाई, जो गौर से सुनिए, कि एक बुढ़िया थी बचपन में मर गई। एक बुढ़िया थी बचपन में मर गई। जाहिर सी बात है, कहानी कंप्लीट है, उसे इनाम मिला और वो जीत गया मुकाबला। आज मेरी कंडीशन भी वही है कि मैं भी कुछ इसी तरह का बस मुख्तसर सा कह के रवाना हो जाऊं, वरना फिर आप लोग सुनेंगे भी नहीं मुझको, मेरी बात है। मैं तो ठीक है, इन बच्चों से इंशाल्लाह फिर कहानी सुनाने आऊँगा इंशाल्लाह। अगर ये लोग मुझे मौका देंगे तो मैं मकतब में आऊँगा किसी मौके पर, तो बच्चों को कहानी सुनाऊँगा। मैं दो चार बातें, एक तो बहुत इख्तिसार के साथ इस मदरसे, इस मकतब और इस प्रोग्राम के बारे में। मैं अभी बाहर निकलूं, मैं अभी इस मकतब से बाहर निकलूं, कोई मुझसे सवाल करे कि आप कहाँ गए थे और क्या देखा क्या सुना, तो मैं शॉर्ट में मुख्तसर में ये कहूँगा कि आज मैंने एक अनोखा मकतब देखा, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि अब मकातिब वो काम नहीं कर रहे हैं, वो निज़ाम नहीं है, वो इंतज़ाम नहीं, वो सारी चीज़ें मैंने आज देखी, मुझे बड़ी खुशी हुई। प्रोग्राम के सिलसिले में कहूँगा कि आज तो इस प्रोग्राम में एक छोटे से बच्चे ने दिल जीत लिया, जिसके लिए मुझे कहना पड़ रहा है कि वाह वाह शाबाश बच्चे, तू जवा मर्दों से बाजी ले गया। तो शायद उस्मान या हसन क्या नाम था, वो यूँ कहिए कि इस प्रोग्राम का मांसल था वो। वैसे प्रोग्राम तो जो कुछ भी पेश किया आप लोगों ने, और चाहे वो बड़ों की तरफ से हो या बच्चों की तरफ से, बहुत अच्छे थे। और उस अच्छाई को आप यूँ समझिए कि जब भी कोई प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो हर शख्स ने ये चाहा कि उसको कैद कर ले। वो अपने आप को रोक नहीं सका, फ़ौरन मोबाइल लेकर खड़ा हो गया और उसको अपने पास कैद करने की फ़िक्र करने लगा। तो ये इस बात की दलील है कि आप सब ने इन प्रोग्राम को पसंद किया, सराहा और बच्चों की हौसला अफजाई की। आपका ये अमल, ये एक्शन, ये हरकत जो है बच्चों के लिए मुफीद साबित होगी इंशाल्लाह। और मज़ीद कुछ प्रोग्राम के सिलसिले में और कुछ स्कूल के सिलसिले में मशवरा था, लेकिन वक्त कम है और अभी शायद स्कूल की रिपोर्ट भी पेश होनी है। तो मैं इंशाल्लाह किसी मौके पर उन लोगों से, उन हजरात से गुफ्तगू करके अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक चीज़ जो मैंने महसूस की, चूँकि आप लोग फिर नहीं मिलेंगे, यहाँ पे हौसला अफजाई बच्चों को खूब हुई, उसमें कमी नहीं हुई। लेकिन मैं सोच रहा था, मुझे बैग से किसी की आवाज़ आई कि भाई ये इतनी रकम है, तमाम हुफ़ाज़ में, तमाम मौलवी साहिबान में तकसीम कर दिया। मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई कि कोई एक फ़र्द तो है जो इस तरफ भी तवज्जो दे रहा है, इस तरफ भी तवज्जो कर रहा है कि ये बच्चे जिन्हें हम अपना समझ करके उनकी हौसला अफजाई के लिए इनामात तकसीम कर रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं, उन्हें खुश कर रहे हैं, तो कोई ऐसा भी तो होना चाहिए कि जो इस पहलू पे भी गौर करे कि मेरे बच्चे को इस स्टेज तक पहुंचाया किसने, उनकी हौसला अफजाई हो कि ना हो। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और इस पहलू से मुझे कमी महसूस हो रही है। मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे वो लोग जिन्होंने रातों दिन एक किया है, हौसला अफजाई के लिए कोई ज़रूरी नहीं रकम, हौसला अफजाई के लिए चंद जुमले ही आपके लिए बहुत मुफीद उनके लिए होंगे, साबित होंगे और आपके बच्चों के लिए भी मुफीद होंगे। इसलिए ये पहलू जो कम था, मैं इस तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। प्रोग्राम के सिलसिले में, एक मकतब के सिलसिले में मैंने जो महसूस किया कि यहाँ ज़िम्मेदारान भी होंगे और जो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ का नौजवान, यहाँ के अफराद, यहाँ के लोग इस पूरे मकतब के साथ,
मैं खाली इतनी देर में, चूँकि मैंने रात में भी फेसबुक में कल या परसों मैंने देखा कि यहाँ के नौजवान बजाते खुद जो है ज़रा मिट्टी कर रहे हैं, सामान ढो रहे हैं और उसको तैयार कर रहे हैं। रात में ही मैंने किसी फेसबुक के किसी उस पर देखा मैंने पेज पर कि ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और उसमें सिर्फ हमारे असातिज़ा ही नहीं बल्कि गांव के चंद अफराद भी शामिल हैं उसमें। तो ये देखकर मुझे खुशी हुई कि ये मकतब यतीम नहीं, इसके पुरसाने हाल बहुत सारे लोग हैं। तो ये वो लोग हैं जो वाकई दर्द रखते हैं अपने बच्चों का, अपने कौम के बच्चों का। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला आप लोग बाकी रखें, और गांव के जितने मकातिब हैं जो आज राइज हो गया, मैं खुद एक इंग्लिश मीडियम स्कूल का जिम्मेदार हूँ, जो आज राइज हो गया है कि लोग मकातिब को बेहैसियत बेवैल्यू बना रहे हैं, मकातिब की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और मकातिब से हटाकर लोग बच्चों को दूसरी जगहों पर दाखिल कर रहे हैं। यहाँ तक नहीं देखते कि हम जिसके पास भेज रहे हैं, हम जो चाहते हैं वो लोग हमारे बच्चों को वो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, लेकिन हम आँख बंद करके भेज देते हैं खाली कौम के नाम पर, कि वाहवाही के नाम पर कि मेरा बच्चा फला इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, जबकि हम खुद गांव की सतह तक छोटे बच्चों का इंतजाम कर सकते हैं। और ये गांव कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई। ऐसा करना चाहिए। और वो लोग जो इससे लगे हुए हैं, अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो कम से कम उनकी हौसला अफजाई ज़रूर करना चाहिए। आप बुजुर्गों से भी जो यहाँ मौजूद हैं या जो लोग जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उन सब से मैं ख्वाहिश करूँगा कि इन नौजवानों की ज़रूर जो हौसला अफजाई करें, उनका ताउन करें, उनकी कोशिशों को सराहें, ताकि हमारी नई नस्लें आगे बढ़ें। मैंने बस चंद बातें करके, हमारे यहाँ पे ख़वातीन भी बैठी हैं, कि अल्लाह ताला की इरशाद है कि अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कौन है जो अपने बेटे को जहन्नम की आग में डालेगा? कोशिश वो चाहेगा कि चला जाए? नहीं, हर आदमी चाहता है, लेकिन इसकी फिक्र करनी है कि हम अपने आप को जहन्नम की आग से कैसे बचा सकते हैं और अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं। मोहब्बत का तकाजा है अपने बच्चों से कि मैं अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाने की फ़िक्र करूं, मैं अपनी भी फ़िक्र करूं, अपने बच्चों की भी फ़िक्र करूं। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि वालिदैन की तरफ से बेहतरीन तोहफ़ा बच्चों के लिए उनकी अच्छी तालीम और तरबियत है। हम जो करते हैं परवरिश कर रहे हैं, परवरिश में सिर्फ ये आ सकता है कि हमने खाना दे दिया, कपड़ा दे दिया, उनकी ज़रूरतें पूरी कर दी, लेकिन तरबियत जो है हम उससे गाफिल हैं। हम तरबियत यानी हम जो कुछ बनाना चाहते हैं, जो कुछ जिस फॉर्म में, जिस शक्ल में अपने बच्चे को देखना चाहते हैं, अच्छा इंसान, अच्छा मुसलमान बनाना चाहते हैं, उस सिलसिले में हमारे इक़दामात नहीं होते, हमसे कोताहियाँ होती हैं। उसकी तरफ हम सबको फिक्र करनी चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो गोया कि अगर हमने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की, उसकी फ़िक्र की, तो गोया कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया जो अल्लाह की जानिब से हमारे ऊपर आयत हुआ था कि बेहतरीन तरबियत की जाए। जो हम अपने बच्चों को बेहतरीन गिफ्ट की शक्ल में, बेहतरीन हदिये और ताज़िये की शक्ल में दे सकते थे, वो दिया हमने। इसलिए आज बहुत ही इख्तिसार के साथ मैं सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हम सबको अपने बच्चों की हम सब फिक्र करते हैं, लेकिन साथ साथ इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि हमारी नई नस्लें अच्छे इंसान की शक्ल में आएँ। ये जो हमारा समाज जो तामीर हो रहा है, जो माशरा एक अच्छा माशरा, इस्लामी माशरा बने, और उन सब में हम सब अपना जो है रोल अदा करें। अगर हमारी हैसियत वालिदैन की है तो वालिदैन की फ़िक्र करें, अगर हमारी हैसियत एक पड़ोसी की है तो पड़ोसी होने की हैसियत से हम फ़िक्र करें बच्चों की। हमारी हैसियत अगर टीचर की है तो टीचर होने की फ़िक्र करें। हमारी जो हैसियत है और जो कुछ हमसे हो सकता है, अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने की फ़िक्र करनी चाहिए। ये देखिए, खाना खिला लेना, कपड़े पहना लेना, ज़रूरतें पूरी करना जो जानवर भी करता है। एक जानवर भी अपने बच्चे से इस तरह से मोहब्बत कर लेता है, इस तरह से काम उसकी ज़रूरतें पूरी कर लेता है, लेकिन उनकी रूहानी ग़िज़ा, उनकी तरबियत करना ये इंसान ही कर सकता है, और यही हमसे मतलूब भी है। इसलिए हमें फ़िक्र करनी चाहिए, और महज सिर्फ रज़ाए इलाही मकसूद हो। मकसूद ये ना हो कि मेरा बच्चा जो है बहुत आला मकाम पे पहुंच जाए, चाहे उसकी आखिरत ख़राब हो जाए तो क्या, उसकी आखिरत ख़राब हो जाए क्या। नहीं, मकसूद ये होना चाहिए हमारे सामने कि बच्चा मेरा दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि हम लोग दुआ मांगते हैं, और उस दुआ को जामे दुआ कहा जाता है कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। कि अल्लाह ताला तू मुझे इस दुनिया में भी नेकी और भलाई अता कर, और आखिरत में भी। खुद हमारा इस्लाम सिखाता है
कि हम दुनिया को भी बरतें, इस्तेमाल करें और आखिरत की तैयारी करें इस दुनिया में रह करके। तो हमें दोनों की फिक्र करनी चाहिए कि मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर भी बने, ज़रूर बने, मेरा बच्चा प्रोफेसर भी बने, टीचर भी बने, मुअल्लिम भी बने, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छा इंसान और अच्छा मुसलमान भी बने। इसकी फिक्र हम सबको करनी चाहिए। अगर हम इसकी फिक्र कर रहे हैं तो गोया कि दोनों जहां में कामयाबी है। गोया कि हमने फरीज़ा जो अल्लाह की जानिब से हमारे ऊपर आयत हुआ था उसको अदा किया। अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई हम सबको उसकी फिक्र करनी चाहिए, इसको गौर करना चाहिए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं इसके बाद इस मदरसे के सदर मुदर्रिस मौलाना आसिफ इस्लाही साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी ख्याल का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। सलाम कर रब्बी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अंबिया वल मुरसलीन। मोहतरम हज़रात और ख़वातीन, अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये हम मुदर्रिसीन के लिए बड़ी खुशी का मौका है। देख करके दिल हमारा बाग बाग हुआ जा रहा है कि इतने सारे लोग यहाँ जमा हैं। ये इस बात का पता है कि आप लोगों को दिलचस्पी है मदरसे से, लेकिन हम लोग जिस चीज़ से हर दिन गुजरते हैं, बहसीत उस्ताद, मैं वो बात ज़रूर आप तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि इसमें सरपरस्त हजरात भी हैं, ख़वातीन भी हैं और मर्द हजरात भी हैं। बच्चों से ये पूछा जाता है कि बच्चे क्या आप खाना खा के आए हैं, तो पता चला कि वो चले आए 1 बजे तक, उनको मदरसे में रहना और भूखे आए। ऐसे भी मदरसे, मुझे हैरत होती है कि उस माँ के मुंह में कैसे लुकमा जाता है जिसने अपने बच्चे को भूखा भेज दिया, और उस बाप को कैसे खाना हलक के नीचे उतरता है जिसका बेटा भूखा चला है। फिर पता चला कि कुछ देर बाद कुछ बच्चों की टिफिन आई, खाना उनका आ गया, लेकिन सबका नहीं। कुछ न कुछ बच्चे हर रोज़ भूखे रहते हैं। इस बात पे जो सरपरस्त हजरात हों, चाहे वालिदैन हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, इस पर ख्याल दें, आपका अपना बच्चा है। ये मुझे पैगाम पहुंचाना था आप लोगों को। दूसरी बात ये है कि बच्चों से हम ये पूछते हैं कि कितना पढ़े हो, घर पे पढ़ के आए, नहीं तो 99% बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि ना, हमने नहीं पढ़ा। तो जो काम हम यहाँ करवाते हैं बस वही उन बच्चों के लिए होता है। घर पे कितने बच्चे भाग के सवेरे आते हैं, यहाँ के नकल लिखते हैं, थोड़ा सा मौका मिल गया इंटरवल में तो उस वक्त नकल लिख लेंगे। बस वो ज़रूरी समझते हैं कि नकल की ज़रूरी जांच ही जाएगी, सबक नहीं सुनेंगे तो मार खा लेंगे, सब चलता है। तो बराए मेहरबानी इस पर आप तवज्जो दें। अब मैं बात आज के असल प्रोग्राम की तरफ आता हूँ। ये प्रोग्राम हुआ है और प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे मेहमान आए, जिनमें ख़ास तौर से मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी जनाब आरिफ इस्लाही साहब और हाफिज़ वसीम साहब और बहुत से मेहमान हैं जिनका मैंने नाम नहीं जानता हूँ या सबका नाम लिया भी नहीं जा सकता तफसील से, उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप यहाँ आए और आकर के हमारी हौसला अफजाई की, और गांव के जो हजरात हैं जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम करने में सपोर्ट किया, और जिन लोगों ने खुद से हाथ से या पैर से कुछ मदद नहीं की, उनकी दुआएं साथ रही हैं। इस वजह से ये प्रोग्राम बड़ा कामयाब रहा है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी आप लोग ताउन करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप देख लीजिए मदरसे की शक्ल बिल्कुल बदली हुई है। इसका बहुत बड़ा जो कहेंगे कि जिनके जिम्मे जाता है, ये सेहरा बंधता है जिनके सर, महताब आलम साहब हैं। ख़ास तौर से उनका नाम मैं ज़रूर लूँगा कि वो मेरे देखने में करीब करीब 2 महीने से लगे हुए हैं। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे, दुनिया में और आखिरत में भी वो सुरखरू हों। मोहतरम हज़रात, आपने अपने बच्चों का कारनामा देखा। मैं
आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि उनकी भी हौसला अफजाई कीजिए और उनको घर में इस तरह का माहौल दीजिए कि वो आपके लिए आइंदा वक्त के लिए, आने वाले वक्त के लिए वो आपका जो तोशा बने, आखिरत का तोशा। अगर वो नेक होंगे तो ऐसा हो सकता है, और अगर बद होंगे तो फिर वो आखिरत में आपको के लिए वो बाले जान बनेंगे। मैं और कोई ज़्यादा नहीं कहूँगा, इसलिए कि वक्त मुझे बहुत कम मिला है। मैं फिर एक बार अब सारे लोगों का बहुत ही सुकून से आपने प्रोग्राम सुना और बड़ी तवज्जो दी, बच्चों को इनामात तकसीम किए, और जो जिन बच्चों का नाम नहीं था लिस्ट में, उन बच्चों से भी मेरी दरख्वास्त है कि इंशाअल्लाह ताला आप मेहनत कीजिए। अब अगले प्रोग्राम में आप लोगों का नंबर होगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना? मेहनत करेंगे आप लोग और तैयारी कीजिए। और अब कल से जब मदरसा खुलेगा तो सीधे पढ़ाई में लग जाना है और इम्तिहान तक बहुत मेहनत से पढ़ के अच्छे नंबरात हासिल करना है इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, मैं आप इन्हीं बातों पर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला किसी तमहीद के शुक्रिया हमारे मदरसे के सदर मुदर्रिस साहब ने अदा कर दिया है, और तालीम के ताल्लुक़ से हमारे मेहमान मुअज़्ज़ज़ ने बात कर ली है। मैं टू द पॉइंट मदरसे पे आता हूँ। जो हमारे इस मदरसे का मकसद है, हमारे मुस्तक़बिल की प्लानिंग है, उसके ताल्लुक़ से मैं सबसे पहले अपने पूरे साथियों का, अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने में, इस प्रोग्राम को सजाने में हमारा साथ दिया, और हमारे बड़े जिन्होंने दुआएं की, हमारी माएँ और बहनें जिन्होंने दुआओं के साथ माली ताउन भी किया। और इस प्रोग्राम, ये मदरसे का जो नक्शा आज नज़र आ रहा है प्रेजेंट टाइम में, ये कहीं ना कहीं जो ताउन है जिससे इस मदरसे की इंतज़ामिया का हौसला बढ़ा, वो हमारे गांव के बड़े भाई मोहतरम जनाब अबुल्लैस साहब है उर्फ डब्लू भाई, जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन लगातार वो ये कह रहे हैं कि आतिफ जो कुछ भी कमी होगी, जैसी भी कमी होगी, हम उसके लिए तैयार हैं। बस आप लोग मदरसे को निखारते रहिए, मज़ीद इसको मॉडर्न करिए। लेकिन मॉडर्नाइजेशन का ये मतलब नहीं कि हम अपना दीन और इस्लाम छोड़ जाएं। तो मैं एक बार फिर डब्लू भाई का और ख़ास तौर से मेहताब चौधरी जो लगातार 3 महीने से कंटिन्यू इसमें वक्त दे रहे हैं, उसके साथ साथ हम लोगों को दुआओं से भी नवाजते हैं। दुआएं उनकी क्या, वो गाँव वाले जानते हैं कि वक्त हम लोग चूँकि पढ़ने वाले हैं, स्टूडेंट हैं, वक्त दे नहीं पाते हैं, तो ये उनका हक है। और स्कूल का मकसद जैसे कि दीवार पे लगा हुआ है, ये कौमों की मानवी ज़िंदगी का हिसाब तादाद पर नहीं, इसका मदार इस्तिक़ामत, ईमान और सीरत व अमल पर है। हाज़रीन, इस मदरसे का मकसद, चूँकि मदरसा मकतब है, इसको हम मॉडर्न बनाएंगे, लेकिन हमें दीन की बुनियादी तालीम देना है। बच्चे माँ बाप का अदब करें, बच्चे दीन जाने, बच्चे अल्लाह को जाने, बच्चे अल्लाह के रसूल को जाने, क्योंकि हमारे लिए जाए पनाह सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। हम जिस हाल में रहें, जहाँ भी रहें, दुनिया के जिस शोबे में रहें, हमें इस्लाम ही हमारे लिए छत का काम देगा। तो इस मदरसे का मकसद लोगों को, जो बच्चे हैं, इनके अंदर दीन और ईमान, अल्लाह और उसके रसूल का असल तारुफ, अल्लाह और उसके रसूल का बताया हुआ जो मकसद है ज़िंदगी गुजारने का, उसको प्रयास कराना। हाज़रीन, इस वक्त स्कूल की हालत यह है कि इस मदरसे में तकरीबन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे मदरसे की तारीख की सबसे ज़्यादा तादाद है इस वक्त मदरसे में बच्चों की 215 बच्चों की तादाद है इस वक्त। 5 में 9 बच्चे हैं, 4 में 21 बच्चे हैं, 3 में 41 बच्चे हैं, और 2 में 40, और अव्वल में 51 बच्चे, केजी सेक्शन में 36 बच्चे, और हिफ्ज़ में तकरीबन 15 बच्चे हैं। और ये बच्चे, इनके साथ 7 स्टाफ हमारा है। एक स्टाफ यानी एक साहब गए हुए मुंबई किसी अपने कान के ऑपरेशन से, यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हमारा मदरसे का जो स्टाफ है वो साथ है, और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि मदरसे के बच्चों को निखारा जाए। मदरसे की इंतज़ामिया की लगातार ये कोशिश है कि दिन ब दिन दुगनी रात चौगनी इस मदरसे को मज़ीद से मज़ीद निखारा जाए। अभी मेहमान मुअज़्ज़ज़ ने एक बात कही थी कि लोगों के जहन में ये है कि मकतब अब ख़त्म हो रहा है, हमें इलाके की मकतब की भी खबर लेनी चाहिए, लोगों को अपने मकतब का ख्याल करना चाहिए। मैं इनकी इत्तला के लिए बता देना चाहता हूँ, मैं बज़ाते खुद इस पूरे इलाके का, इस मिर्ज़ापुर के 5 किलोमीटर दाएं बाएं एरिया में जितने मकातिब हैं, मैंने उसका सर्वे कर लिया है बज़ाते खुद।
میرے پاس اس کا پورا ڈیٹا ہے، کتنے بچے ہیں، کتنے اساتذہ ہیں، کیا تنخواہیں دی جاتی ہیں، کیا پریشانیاں، کیا پرابلم ہے، کیا سالوشن ہے، ساری چیزیں جو ہونی چاہیے میرے پاس پورا ڈیٹا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ میرے ساتھ ایک دو صاحب ہیں، وہ ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں۔ اسکول کی حالت جو تھی، پچھلے پروگرام میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم ماڈرنائزیشن کی طرف مکتب کو لے جا رہے ہیں، بچوں کو پڑھنے کے لیے مزید ٹاٹ پہ بیٹھنے کے بجائے ہم بینچ اور ٹیبل لگائیں گے۔ الحمدللہ ہم نے بینچ اور ٹیبل کا انتظام کر دیا۔ ہمارا پلان یہ تھا کہ اس سال صرف اور صرف 4 روم کا پلاسٹر ہو جائے، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ بحسن خوبی یہ پورے مدرسہ، اس پورے مدرسے کا آپ نظارہ دیکھیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ پورے نہیں سمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام کروا دیا، یہ اللہ ہی کا احسان اور اس کا فضل ہے۔ ہمارا جو مستقبل کا پلان ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے سیشن میں انشاءاللہ اس مدرسے کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا، کمپیوٹر بیس پہ پورا اس مدرسے کو آپریٹ کیا جائے گا۔ دوسرا پلان یہ ہے اور جو بقیہ جتنے کلاسز ہیں اس میں بھی بینچ اور ٹیبل کا انتظام کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ بچوں کے کھیلنے کے لیے مزید سہولیات مہیا کی جائے گی۔ ہو یا نہ ہو وہ الگ مسئلہ ہے، اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں بس 2 منٹ اپنی ماما سے درخواست کروں گا وہ بیٹھ جائیں، بات پوری ہو جائے۔ اور آج جو اس علاقے کا معاملہ ہے تعلیمی، بچے صبح 6 بجے اٹھتے ہیں، 8:30 بجے کا اسکول ہوتا ہے، 6:30 بجے ان کی بس آ جاتی ہے، ٹفن لے کے جاتے ہیں، جتنا وزن ان کا ہوتا ہے ان سے زیادہ اس کے بیگ کا وزن ہوتا ہے، آنکھ ملتے اٹھتے اسکول میں جاتے ہیں، 2 گھنٹے کے بعد وہ سو جاتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ اسکول والے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے انٹرول 10 منٹ بھی دیتے ہیں، وہ بھی اساتذہ کا استحصال کرتے ہیں، بچوں کا استحصال کرتے ہیں۔ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں ان کے صحت کی گروتھ کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ یہ ایک مدرسے، یہ ایک اسکول کے اسٹاف اور اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کا بھی یہ فریضہ ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں بیک وقت کمبائن کر کے دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں تو بچوں کی گروتھ ہوگی۔ اچھا، دوسری بات، ہمارے پیرنٹ بچوں کو 5th تک بچوں کو نوبل پرائز دینے کے لیے بچوں کہہ رہے بیٹا مہمان آیا کوئی، بیٹا ادھر آؤ، خالو صاحب کو ذرا پوئم سنا دو، ذرا انگلش یا عربی کا ترجمہ سنا دو۔ بچہ کہاں سنا پائے گا؟ 5th تک ہم کامن سینس یوز کریں، 5th تک بچہ اگر نہیں بھی پڑھے گا، نہیں بھی اسکول میں جائے گا، وہ تب بھی وہ اتنی باتیں جان لے گا جتنی بات ایک نارمل بچہ جو اسکول میں جا کے سیکھتا ہے جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں ہم اس کا خیال کریں۔ تو ہمارا جو اسکول کا مقصد ہے، میں یہ کہوں گا کہ یہاں سرپرست بھی بیٹھے، مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ مائیں قوم کی معمار ہیں۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے خاص طور درخواست کروں گا کہ اگلی سال جو بچے پڑھ رہے ہیں کہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر نئے بچے ہیں وہ میں یہ گارنٹی لیتا ہوں کہ جو بچے ہم باہر بھیج رہے ہیں ان سے کہیں اچھی ہم تعلیم، یہ مدرسہ تعلیم دے گا، اور مزید سلیبس کو موڈیفائی کیا جائے گا۔ اس مدرسے میں بچوں کا داخلہ کروائیں اور خود اس مدرسے کے تئیں اپنے آپ کو بیدار رکھیے، مالی حساب سے، جانی حساب سے، اپنی دعاؤں میں اس مدرسے کو، مدرسے کی انتظامیہ کو، گاؤں والوں کو، پوری امت مسلمہ کو یاد رکھیں، تب کہیں جا کے مستقبل سنورے گا ہمارا۔ وداؤٹ ایجوکیشن دیر از نو فیوچر۔ میں اپنی بات یہی پہ ختم کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ساتھ حبیب اللہ صاحب جو اس اسکول کے ناظرین وہ بھی آ گئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں نہیں تھے لیکن لگاتار وہ موبائل سے اس مدرسے کی خیریت لیتے تھے۔ پیچھے سے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں دعا کروا دی جائے، لیکن اس مجمع میں سے کئی لوگوں کی یہ درخواست ہے، مجھ پہ غصہ بھی کیے ہیں، مسجد اقصیٰ کا جو پروگرام ہوا تھا وہ صاف کلیئر نہیں ہوا تھا، اساتذہ کی محنت ہے، وہ کیوں نہ دوبارہ کروا دیا جی، جیسے اتنا ویسے 5 منٹ اور۔ تو میں بڑی ہی دل سے اور بڑی ہی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ آپ لوگ اگر بیٹھ سکتی ہیں 5 منٹ تو بیٹھ جائیں، اگر نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ضرور بیٹھیں گی اور میری بات کو سمجھیں گی۔ میں درخواست کروں گا کہ مسجد اقصیٰ کا جو ترانہ پیش کیا وہ بچے اسٹیج پر آ جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کا ترانہ ختم ہونے کے بعد پروگرام کے اختتام کا اعلان کر دیا جائے گا۔ شکریہ۔ سارے لوگ اپنی نشست پر بیٹھے رہے، افراتفری کا ماحول نہ بنائے، اس لیے کہ جو مقصد ہمارا ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اساتذہ کی محنت پچھلے 15 دن کی، میں نے ان کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا، لیکن بہرحال شکریہ تو عمل سے ہو ہی جائے گا۔
आप लोगों के जहन में ये चल रहा होगा कि 2 बजे की नमाज का ऐलान करके साहब क्या करवा रहे हैं। मैं ये बता दूं 1:30 बजे पहले ही वो अजान हो चुकी है, तो मजबूरन हमको जमात अलग से बनानी पड़ेगी।